Hello everyone, 𝐁𝐨𝐭𝐡. In this video we are going to discuss CA Inter May 2021 RTP of accounting, and basically question number 4, question number 9, question number 13, question number 15 and question number 17, which are the most important questions of these RTP. You please note down these question numbers. You have to revise these questions at the time of exam. One by one we are going to quickly revise the RTP without wasting even a single second. So let's start. So now we are going to discuss RTP May 2021 of accounts. So for the first question is, 𝐸 Limited has authorized capital of rupees 50 lakhs divided into 5 lakh equity shares of rupees 100 each. So this is basically the authorized share capital, and it will be presented in the first notes to accounts as authorized share capital. Their book shows the following ledger balances as on 31st March 2021. The opening balance of inventory, discounts and rebates, bank current account, cash in hand. So you can see there are multiple informations given in this: carriage inward, purchases, rent, furniture, business expense, wages, freehold, plant, engineering tools, trade receivables, advertisement, commission and brokerage expenses, call scenario, equity share capital, trade payables, sales, rent credit. It means it will be an income, and transfer fee received again it will be an income. Miscellaneous income, it will be shown as other income. Profit and loss credit balance in the beginning, repairs to building and bad debts. So now thereafter there are certain adjustments. The inventory valued at cost or market value, whichever is lower, as on 31st March 2021 was inventory value was 7,05,000. Outstanding liabilities for wages are rupees 25,000. So you can see that wages paid during the year are 14,79,000 and the outstanding liabilities 25,000. So this will be added in the 14,79,000 and it will be shown in employee benefit expenses. Business expenses are 36,500. It was decided to transfer 10,000 to reserves. Charge depreciation on WDV on plant and machinery at the rate of 5%, engineering tools 20%, furniture and fixture 10%, provide 25,000 as doubtful debts for trade receivable, provide for income tax at the rate of 30%. It was decided to transfer rupees 10,000 to reserve. So now you are required to prepare statement of profit and loss for the year ended 31st March 2021 and balance sheet as on that date. So one by one we will start the solution. First of all, we know that we need to prepare the balance sheet. So balance sheet of 𝐸 Limited as on this date, and the very first is equity and liabilities under which shareholders fund will be represented, and the first sub item will be share capital, and it will be presented in note number 1. Now what will be present in the share capital note number 1? Both simple. It's very simple. In share capital, first of all, authorized share capital will be shown, and we know that is the 5 lakh equity shares of rupees 10 each. Yes or no? So here it will be represented like this. Okay, but this will not be considered in totaling. Thereafter there is a issued capital, 2 lakh equity shares of rupees 10 each, 20 lakh. However, there is a calls in arrear of rupees 2 per share of rupees 10,000. It means on 5,000 shares we have not received rupees 2 per share. That's why this amount is 10,000. Hopefully you are getting it. 5,000 share पे 2 रुपए से नहीं आया. So now if 5,000 shares we have not received rupees 2 per share, so these are partly paid up, or you can say not fully paid up. So if the total issued capital is 2 lakh and 5,000 shares are partly paid up, 1,95,000 equity shares are fully paid. Yes or no? So we have presented it in this manner: subscribed capital and fully paid 19,50,000, and subscribed capital but not fully paid 5,000 equity shares of rupees 10 each, 8 paid because rupees 2 is the calls in arrear. Unpaid call is 10,000. So the total comes out to be 19,90,000. So in this way you will present the share capital part. So here 19,90,000 will be mentioned. Now thereafter we know that the second component is reserve and surplus. जो second component है वो reserve and surplus है. So now in the reserve and surplus, the opening balance is rupees 67,000. Yes or no? So you can see opening balance 67,000. Add profit for the period, and this part you will leave blank for right now. Though here it is mentioned as 3,15,000. After preparing the SOPL, only then you will come to know what is this figure. So right now you will leave it as in blank, and thereafter we have to transfer the amount of rupees 10,000 to reserves. So let's transfer to reserve 10,000, and this transfer to reserve will again be represented as general reserve, that is 10,000. और आप इसको
कोई और नाम नहीं दे सकते, क्योंकि अगर सिर्फ ट्रांसफर टू रिजर्व लिखा है तो जनरल रिजर्व या सिंपली आप उसे रिजर्व लिख सकते हैं, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर ये आपका हो गया, बट ये फिगर अभी हमें इसको पता नहीं लगा है, सेकंड वाले को हम अभी कंक्लूड नहीं कर सकते। और रिजर्व एंड सरप्लस का सेक्शन हमेशा आपको खाली छोड़ के चलना है जब तक आपको बेसिकली जो है एसओपीएल आप प्रिपेयर अपना नहीं कर लेते, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है करंट लायबिलिटीज का सेक्शन, ठीक है। करंट लायबिलिटीज की अगर हम बात करें तो हमारे पास है ट्रेड पेबल्स 2,40,500 के, 2,40,500. देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ नॉन करंट लायबिलिटीज, सो नो नीड टू मेंशन इट, ओनली करंट लायबिलिटीज विल बी मेंशन्ड, ओके। जो पॉइंट्स आपके होते जा रहे हैं उसको सिंपली आप टिक करते रहिए ताकि आपको एंड में इशू ना आए कि कौन सा पॉइंट रह गया, कौन सा हो गया। Now after this, in the adjustment we have outstanding liabilities for wages and business expenses rupees 36,500. So for wages outstanding is 25,000, for business expenses it is 36,500. So now in other current liabilities, the working note number 3 you will make, and in which you will write down outstanding wages and outstanding business expenses, and the sum total will be 61,500. You can check outstanding expenses 61,500. Now after that we have short-term provisions. Now for the time being you will leave the short-term provisions, because in the short-term provisions we have to show provision for income tax, and provision for income tax can be computed at the rate of 30% on the profits arrived after preparing the SOPL. तो SOPL बनाने के बाद ही प्रॉफिट पता लगेगा, तभी आप इसको कर पाओगे, इसको अभी आप छोड़ दीजिए। Now so for this equity and liabilities gets over except this reserve and surplus and short-term provision. Now coming to the asset part, the first is the property plant and equipment. So हमारे पास complete knowledge है property plant and equipment का, information भी है और हमें पता भी है कैसे करना है। चलिए एक एक चीज़ करके देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लैंड की, सो लैंड की वैल्यू हमारे पास फ्री होल्ड लैंड है 7,30,000 का, कोई डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज नहीं होगा, WDV वही रहेगा। फिर प्लांट एंड मशीनरी वी हैव 7,50,000, 5% उस पर डेप्रिसिएशन आप चार्ज करेंगे, 37,500 इज द डेप्रिसिएशन, सो 7,12,500 उसका WDV आ जाएगा। उसके बाद अगर आप बात करते हैं नेक्स्ट की, तो हमारे पास आता है फर्नीचर एंड फिक्सचर 1,50,000, जिस पे 10% से डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है, तो ये आपके पास आता है 1,35,000। इसके बाद हमारे पास इंजीनियरिंग टूल्स हैं, अगेन दीज आर द पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 1,50,000, यू विल चार्ज द डेप्रिसिएशन at the rate of 20% on the same, so depreciation 30,000, this is the WDV. So the sum totals comes out to be 16,97,500 and it will be shown here as 16,97,500. okay, so hopefully there is no doubt in this. Thereafter we have the current assets, the inventories. The inventory, see the inventory as on this was 7,05,000, so here we will show the closing stock, that is 7,05,000. Thereafter we have trade receivables of 4,05,500, but we have to create the provisions of 25,000, so figure will be that what will be 3,75,500. इतना हमारा ये figure आ गया। Thereafter we have next cash and cash equivalent. So here in the beginning you can check bank current account and cash in hand, this is 20 plus 11, that is the 31,000, and for this you will prepare the working note. okay, now coming to the SOPL part, which is the most important part. The very first part is revenue from operation, that is the sales, which is 36,17,000. okay, thereafter other income. In other income we will show the rent and transfer fee received, this is 30,000 plus 6,500, so this will be 36,500. for this working note number 8 you can refer. So the sum total will be 36,53,500. so this is the total revenue. In expenses we have the cost of purchases, which is 12,32,500. okay, thereafter we have change in inventories. The opening inventories value is valued at 6,65,000 and the value of closing inventory 7,05,000, so this will be negative 40,000. Thereafter we have employees benefit expenses, under which wages with outstanding wages of 25,000 will be shown, so this will be 14,79,000 plus 25,000, this will be 15,04,000, and for this we have prepared working note number 9. Thereafter we have depreciation and amortization expense, and for this we need not to prepare a new working note. You can check the total amount from here, which is 82,500. आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, 82,500 का आपका टोटल अमाउंट जो है वो आपको दिख जाएगा। Thereafter all other expenses will be shown as the other expenses, and what are these? Like carriage inward, we have rent and taxes, we have business expenses, so all these will be the other expenses. So you can check here one by one all the expenses. See, carriage inward we have, okay, thereafter we have rent taxes, okay, then we have
business expense is shown as miscellaneous expense, or rather than you can simply write it as business expense. There is no issue at all. Okay, here we have discounts and rebates. Okay, thereafter one by one all the expenses will be considered. एक एक करके सब पे टिक लगाना है आपको. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आर देयर. ओके, रिपेयर टू बिल्डिंग इज देयर. देयर आफ्टर बेड डेट्स वी हैव. उसके बाद हमने प्रोविजन फॉर बेड डेट्स बनाया था, दैट इज 25,000. ओके, then we have the commission and brokerage of rupees 67,500. so this total comes out to be 4,24,500. तो ये जो है 4,24,500 रुपीज़ आप यहाँ पर अपना एज एक्सपेंस दिखा देंगे. सो टोटल आ गया 32,03,500. दिस माइनस दिस विल बी द प्रॉफिट. ऑन दिस 30% टैक्स विल बी क्रिएटेड विच विल बी 1,35,000. ओके, so now this tax 1,35,000 will be reflected as short-term provisions 1,35,000. okay, and we have arrived on the figure that is profit for the period, that is 3,15,000. तो इसको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे 3,15,000 को. तो उसके बाद ये फिगर आपकी आ गई, that is 3,82,000, और 3,82,000 को आप यहाँ लिखेंगे. तो आप देखेंगे कि दोनों साइड जो है आपकी बैलेंस शीट की वो सिंपली टैली हो जाएगी. सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ RTP May 2021. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. So now coming to the part A of question number 2, very simple question. XYZ Limited is having inadequacy of profits in the year ending 31st March 2021 and it proposes to declare 10% dividend out of general reserves. Okay, 10% dividend they want to declare out of general reserve. From the following particulars, ascertain the amount that can be utilized from general reserves according to the company's declaration of dividend out of reserves rules 2014. So they have 5 lakh equity shares of rupees 10 each fully paid up. The total comes out to be 50 lakh. So we have to declare 10% dividend. So what will be the dividend value if we can declare 50 lakh का 10%, 5 lakh, yes or no? जनरल रिजर्व है 25 लाख का, रिवैल्यूएशन रिजर्व है 6,50,000 का, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर है 1,42,500. अब देखो आप एक चीज समझो, 50 लाख का 10% वी हैव टू डिक्लेयर, दैट इज द रुपीज 5 लाख वी हैव टू प्रोवाइड, एंड आउट ऑफ विच वी हैव द नेट प्रॉफिट्स ऑफ 1,42,500. सो आउट ऑफ द पास्ट रिजर्व्स वी हैव टू यूज द डिफरेंस वैल्यू, दैट इज 3,57,500 only. Yes or no? Now for this there are certain conditions. The condition number 1 is that the dividend can be declared out of the past profits, but the rate of dividend cannot exceed the average rate of dividend during the last years. So here they want to declare at the rate of 10% and we have the average rate of 12%. So condition number 1 is met. Since 10% is lower than the average rate of dividend, 10% dividend can be declared. There is no issue at all. Now what is the maximum amount that can be withdrawn from the reserves? That is the 10% of paid up capital plus free reserves. So paid up capital is 50 lakh, free reserves is 25 lakh. So 50 plus 25, this comes out to be how much? 75 lakh, and maximum amount that we can withdraw is 10% of this. Yes or no? So 10% comes out to be 7,50,000, but we have to provide only 3,57,500. हमको तो 3,57,500 ही चाहिए. 7.5 लाख तक के परमिशन कंडीशन 2 से मिलती है, तो there is no issue. Maximum amount that can be drawn from the accumulated profit and reserves should not exceed this, and so there is no issue in this. Now coming to the condition number 3, that is the balance in reserves after withdrawing the amount should not fall 15% of the paid up capital. Yes or no? Please be careful here, the word is only paid up capital, not the free reserves. So 15% of 50 lakh is 7,50,000. So if you will withdraw this amount, that is 3,57,500 from 25 lakh, 25 लाख में से आप ये पैसा निकाल भी लेंगे तो still you will have the balance of how much? 21,42,500, क्योंकि 7.5 लाख से ज़्यादा है. So all the 3 conditions are satisfied. The company can withdraw 3,57,500 from accumulated reserves. So there is no issue. So this was the part A of question number 2. Now coming to the part B. चलिए बहुत ही सरल सिंपल क्वेश्चन. मोहित लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज ऑन 31st March 2021. ऑथोराइज्ड कैपिटल है 1 लाख, 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100, 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच.
Issued and subscribed capital 77,500, 14% preference shares 100 each, इतने का 5,40,000 equity shares of rupees 80 paid up, इतना. Okay. Share suspense account है 90 lakh, reserve and surplus में capital reserve है जिसमें 5 lakh revaluation reserve है. Security premium है 2,25,000. Secured loans में we have 15% debentures. Unsecured loan में we have public deposits. Cash credit loan from SBI. Current liabilities में we have trade payables. In assets we have investment in shares, debentures 3 crore 50 lakh 50,000. Profit and loss account we have the debit balance of 68 lakh 50,000. Share suspense account represents application money received on shares, the allotment of which is not yet made. Okay, you are required to compute effective capital. So as per the provisions of schedule 5 of, we have to compute the effective capital. If it is a non-investment company, would your answer be different if Mohit Limited is an investment company? See, while computing the effective capital, first of all, share suspense account will not be considered because allotment is not yet made. Yes or no? In capital reserve, we are not going to consider the revaluation reserve. So only 3,77,500 will be considered. Yes or no? The main point is this. And being the non-investment company, if it is the non-investment company, investment value, this investment in shares and debentures, this will be reduced from the capital. However, if it's an investment company, there is no need to reduce it. अगर investment company है तो minus करने की ज़रूरत नहीं है. So it's very simple. You can check. This is the preference share. The same figure is of equity. Then we have taken the capital reserve excluding of revaluation reserve. 877 minus 5. This is 377,500. Thereafter security premium 225. Okay. Then we have 15% debentures. Okay. Then public deposits we have. Then the short-term credits are not considered. So this and this will be ignored. Then asset investment, this will be reduced in non-investment, but investment company there will be no impact. Profit and loss we have debit balance, so therefore it will be reduced from both the point of view. So this is this and this. So the balance will be effective capital A minus B. तो बहुत ही simple सरल question. Now we will move to the question number 3. Now coming to the question number 3, cash flow statement, and very interesting question. The following are the extracts of balance sheet and statement of profit and loss of Supriya Limited. Extract of balance sheet, equity and liability. Shareholders fund we have share capital 2021 500, 2020 में थी 200. ओके, तो 300 का इंक्रीमेंट हुआ है अगर आप देखें. ओके, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक पहले 250 था, अब 0 हो गया, मतलब हमने बैंक लोन रीपे किया है. करंट लायबिलिटीज ट्रेड पेबल्स 3047 थी, 1000 रह गई. नॉन करंट असेट्स में वी हैव प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 128 से 230 हो गए. करंट असेट ट्रेड रिसीवेबल्स 4783 से 2000. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 35 से 212 हो गए. ठीक है. इसके बाद अगर हम बात करें एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L है. एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 25 थे और 69, मतलब लास्ट ईयर 25 हमने पे किए थे, इस साल 69 है और ये सारे थाउजेंड्स में है. अदर एक्सपेंसेस लास्ट ईयर थे 1,10,000, इस साल है 1,15,000. टैक्स एक्सपेंस, करंट टैक्स पिछले साल पे किया था 1,40,000, इस साल 2,43,000. नोट्स टू अकाउंट्स वी हैव शेयर कैपिटल, अदर एक्सपेंसेस. अदर एक्सपेंसेस का मतलब ओवरहेड्स था, यहाँ पर जो आपको इसने बताया था अदर एक्सपेंसेस ये ओवरहेड्स हैं. ओके, कोई दिक्कत नहीं करते हैं. क्या रिक्वायरमेंट है? प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ सुप्रिया लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड इन अकॉर्डेंस विद AS3 यूजिंग डायरेक्ट मेथड. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसमें आपको इन्फॉर्मेशन ऐसी दी है कि इनडायरेक्ट मेथड लगे, बट मांगा डायरेक्ट मेथड से है. और एक बहुत ही अच्छी चीज आपको बोल दी, ऑल ट्रांजेक्शंस वर डन इन कैश ओनली. ऑल द ट्रांजेक्शंस हैव बीन डन इन कैश. देयर वर no outstanding prepaid expenses as on 31st March 2020 and 31st March 2021. Means there is no outstanding in prepaid. You have to ignore depreciation. Dividend paid is 80,000 was paid during the year ended this. So it's a very simple question. It may look initially difficult to you, but it's a very simple question. So how we have to do? See, first of all, cash flow from operating activities. For operating share capital, it will be shown in the financing 200, so 500. So it's a fresh issue of 300, that is 3 lakh. Then long-term loan from bank we have repaid. This is a part of financing. In trade payables, this reduces from 3047 to 1000, meaning thereby we have paid the amount during the year. So cash payment to suppliers, how much? 2047, the difference between this and this. Okay. Then in non-current assets it was 128 and now it is 230, and in question it is clearly given that ignore the depreciation.
You can check it clearly given that ignore the depreciation. So we will assume it to be a fresh purchases and the difference is of 102 and it will be a part of investing. In current asset, trade receivables, it was last year 4783, now it is 2000. So there is a collection from debtors, cash received, this minus this comes out to be 2783. Okay, then you can check in extract of SOPL, employee benefit expenses of current year is 16. This is SOPL. ओके, SOPL में क्या आता है, जो खर्चा होता है, खर्चा क्या है, इस साल एम्प्लॉय को कितना दिया 69, कोई आउटस्टैंडिंग प्रीपेड नहीं है, मतलब ये सारा पे किया होगा, कैश पेड टू एम्प्लॉय 69. अदर एक्सपेंसेस में उसने आपको क्लियरली बोल दिया कि इट वाज ओवरहेड, बेसिकली ये ओवरहेड है, अदर एक्सपेंसेस ओवरहेड है, कितना 115. ठीक है, सो यहाँ पे आपका ऑपरेशन से कितना आ गया 5,52,000. इन्वेस्टिंग का, अच्छा इसके बाद आपका बेसिकली इनकम टैक्स भी है, टैक्स एक्सपेंस करंट टैक्स हमने पे किया है 243. सो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग आ गया. इन इन्वेस्टिंग हमने देखा था परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट था हमारे पास, यस और नो. ये देखिए यहाँ पर 128 से 230 हुआ, इग्नोर डेप्रिसिएशन था तो 102 का परचेज किया. फाइनेंसिंग की अगर हम बात करें तो 200 से 500 हुआ है, मतलब हमने नए शेयर्स इशू किए हैं 300 के. उसके बाद बैंक लोन रीपे किया है कितना 250 का, फिर डिविडेंड पे किया है कितना 80. सो नेट कैश यूज हुआ फाइनेंसिंग में कितना 30. सो दिस प्लस दिस प्लस दिस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आ गया 177. इन द बिगनिंग वी हैव द बैलेंस ऑफ 35. सो यू कैन चेक द आंसर इज क्लोजिंग बैलेंस. सो दिस इज द वेरी गुड क्वेश्चन, बट अगर ध्यान से नहीं पढ़ा तो आप इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करके आ जाएंगे, बट दिस क्वेश्चन इज ऑफ डायरेक्ट मेथड नॉट इनडायरेक्ट मेथड. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. मेगा लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 2020 टू टेक ओवर द रनिंग बिजनेस ऑफ मेजर्स हैप्पी फ्रॉम 1 अप्रैल 2020. द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी वर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च 2021. ओके, ठीक है, 1 जुलाई को आपने टेक ओवर किया, तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड हो गया 1 अप्रैल से 1 जुलाई का, उसके बाद पोस्ट इनकॉर्पोरेशन हो गया. द एवरेज मंथली सेल्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 months ऑफ द ईयर वाज twice the average monthly sales during each of the remaining 9 months, meaning thereby in the pre-incorporation period, basically which is of 3 months, the sales were twice as compared to the post-incorporation period. Okay, so first of all, you are required to compute the time ratio and sales ratio. So what will be the time ratio? The pre-incorporation period is from 1st April to 1st of July, so it is 3 months. Then post-incorporation period, that is from 1st July to 31st March, that is the 9 months. So time ratio will be 3:9, or you can say 1:3. Okay, now coming to the sales ratio. Now see, in the we will assume that the sales, normal sales per month is X. Okay, so in the pre-incorporation period, which is of first 3 months, the sales is twice, that is 2X. So this we will multiply it by 3, तो ये 6X हो गया. और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जो है वो सेल्स कितना है आपका, नॉर्मल है, दैट इज x, और दैट इज ऑफ 9 months, तो ये 3 into 2 हो गया 6x, और यहाँ पे हो गया 9x, तो रेशो आ गया 2:3. तो बहुत ही सिंपल, ये आप अपने लेवल पे भी देख सकते थे. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बी पार्ट इसका. The business carried on by Kamal under the name K was taken over as a running business with effect from 1st April 2020 by Sanjana Limited, which was incorporated on 1st July 2020. Okay, तो 3 महीने बाद, मतलब 3 महीने का पीरियड प्री इनकॉर्पोरेशन है, देन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन है. दिस सेम सेट ऑफ बुक्स वाज कंटिन्यूड सिंस देयर वाज नो चेंज इन द टाइप ऑफ बिजनेस एंड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंडेड वर अवेलेबल. सेल्स, कंपनी पीरियड की सेल्स हुई 40,000, प्रायर पीरियड की थी 10,000. इससे आसान क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको, दो सेल्स रेशो लेने की जरूरत ही नहीं है, मतलब सेल्स रेशो है 10,000 प्रायर पीरियड की थी है, कंपनी पीरियड की 40,000, तो सेल्स रेशो आ गई 1:4. प्री इनकॉर्पोरेशन का पीरियड था 3 months, पोस्ट का है 9 months, तो टाइम रेशो आ गई 1:3. तो बहुत ही सिंपल सरल चीज़ है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है. अब इसके बाद हमें ये सारे चीज़ें गिवन है, और you are required to prepare a statement showing the amount of pre and post incorporation profit on the basis of allocation of expenses. तो बहुत ही सिंपल चीज़, इसके अंदर कुछ भी नया नहीं है. अगर आप देखें सेल्स आपको गिवन ही है, ठीक है. इसके बाद सेल्स में से सबसे पहले हम देखें तो परचेजेस माइनस करते हैं, जो भी आपको गिवन है डायरेक्ट, ठीक है. इसके बाद आपके पास यहाँ पर कैरेज इनवर्ड है कितना 1000. नाउ कैरेज इनवर्ड ना ही आपकी टाइम रेशो में लगता है और ना ही आपका वो सेल्स रेशो में लगता है, वो परचेजेस की रेशो में लगेगा. एक यूनिक पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, वो आपका परचेजेस की रेशो में जो है वो लगेगा. तो परचेजेस की रेशो क्या है 3125 21875, तो 1:7 है. इस रेशो में आप कैरेज इनवर्ड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया. इसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पास क्या क्या है, सेलिंग एक्सपेंसेस एंड सेल्स रेशो में आप लेंगे, ठीक है. फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ,
हमें पता है preliminary expenses are basically related to company, so entire amount will be post incorporation. Then the salaries are 3600 time ratio. Then directors are appointed in company, so entire expense will be post incorporation, yes or no. Interest on capital up to 30th of June, okay, that is 700, so entire amount will be pre-incorporation. So depreciation are 2800, so it will be distributed in time ratio, okay. The rent expenses is 4800, again time ratio. So this is the total of expenses, and thereafter you will find out the pre-incorporation and post-incorporation net profit. So this was the question number 4. Now we will come to the question number 5. Now question number 5, which is of bonus issue, authorized share capital 30,000, 12% preference share, 4 lakh equity shares. This is authorized. Thereafter we have issued and subscribed capital 24,000, 12% preference shares of rupees 10 each, fully paid up 2,40,000, 3 lakh equity shares of rupees 10 each, 8 paid up 24 lakh. In reserve and surplus we have general reserve, CRR, security premium collected in cash, profit and loss account. On 1st April 2021, the company has made final call of rupees 2 each on 3 lakh equity shares, okay, because these shares were partly paid up shares, so company made it fully paid up. The call money was received by 20th April. Thereafter the company decided to capitalize its reserve by way of bonus at the rate of 1 share for every 4 shares held, okay. So first of all, rupees 2 final call will be called up on 3 lakh shares, so entry will be equity share final call to equity share capital, that is the 6 lakh. Thereafter it will be bank account debit to equity share final call 6 lakh, okay. Now after this 6 lakh, the total amount will be 24 lakh plus 6 lakh 30 lakh, और 30 लाख को हम divide by 4 करें, so the share bonus share amount will be 7,50,000, yes or no. Now the bonus share will be firstly paid from CRR, security premium, then using general reserve, and the balance if any left from P&L. Alternatively, you can use the complete P&L and balancing figure you can take from general reserve, but undoubtedly the entire amount of CRR and security premium will be used. So security premium is 75, the CRR is 120. Either you can use the entire amount of general reserve or P&L, and vice versa will be the balancing figure. So here they have utilized the complete figure of general reserve, and the balancing figure is profit and loss, that is 1,95,000. So to bonus to shareholders, this is 7,50,000, and thereafter bonus to shareholders to equity share capital 7,50,000. So this was the question number 5 on bonus issue, and very simple question. चलिए question number 6 की बात करें तो Beta Limited having share capital of 20,000 equity shares of rupees 10 each decides to issue right shares of the ratio 1 for every 8 shares held at par value, okay. तो 20,000 इक्विटी शेयर है 10 का, तो 20,000 इंटू 10 कितना हो जाता है 2 लाख. 2 लाख को अगर आप 8 से डिवाइड करें तो वैल्यू आ जाती है 25,000. तो 25,000, और assuming all the shareholder accepted the right issue and all the money was duly received, pass journal entry. तो बहुत सिंपल है, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, अगेन ओमेगा लिमिटेड ऑफर न्यू शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एट 25% प्रीमियम टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ 1 for 5 शेयर्स. 1 for 5 शेयर्स मतलब 5 के बदले में 1 देंगे. द कम राइट वैल्यू जो था वो 200 रुपये था. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एक्स राइट वैल्यू एंड वैल्यू ऑफ राइट. तो वैल्यू ऑफ राइट क्या होता है, कम राइट माइनस एक्स राइट, और एक्स राइट हमें निकालना है. अब एक्स राइट कैसे निकलता है भाई, 5 के बदले में 1 शेयर मिलेगा, तो ये जो 5 शेयर थे इसको कम राइट वैल्यू से इंटू कर देते हैं हम. 200 इंटू 5 कितना हो गया 1000, और जो नया शेयर होगा वो कितने का मिलेगा 125% प्रीमियम मीन्स 125 का, तो 125 इंटू 1, तो 200 इंटू 5 और प्लस जो नया शेयर है 125 इंटू 1, और इससे टोटल शेयर्स कितने हो जाते हैं 6. सो डिवाइड बाय दिस, तो ये हमारा आ जाता है एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर. कम राइट में से एक्स राइट वैल्यू, कम राइट वैल्यू 200 थी, एक्स राइट वैल्यू है 187.5, दोनों को माइनस कर देंगे तो वैल्यू ऑफ राइट आ गई 12.5 पर शेयर. सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 6. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं रिडम्पशन का. ABC लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज ऑन 31 मार्च 2021. शेयर कैपिटल 50,000 इक्विटी शेयर हैं 10 रुपये के हिसाब से 5 लाख. 1500 10% redeemable preference shares of rupees 100 each fully paid up, that is 1,50,000. Thereafter we have the balance in reserve and surplus. Capital reserve 1 lakh, general reserve we have 80,000. Now profit and loss is 95,000. On 1st April 2021, the board of directors decided to redeem the preference share capital at premium of 10% by utilization of reserve. You are required to prepare
necessary journal entries including cash transaction in the books of the company. So we can check that the preference amount is 1,50,000. So and we have to redeem it at a premium of 10%. So first entry will be what? 10% redeemable preference share capital premium on redemption of preference to preference shareholder 1,50,000, 15 and 1,65,000. Okay. Now thereafter this amount will be paid preference shareholder to bank 165, 165. Now we need to create the CRR. The CRR is created of फेस वैल्यू दैट इज 1,50,000 फेस वैल्यू का CRR क्रिएट करना है. तो फ्री रिजर्व्स में से क्रिएट किया जाएगा. फ्री रिजर्व्स में वी हैव द जनरल रिजर्व एंड P&L. सो इधर आप पहले P&L यूटिलाइज कर सकते हो पूरा बैलेंस जनरल रिजर्व से और वाइस वर्सा. हियर दे हैव फर्स्टली यूटिलाइज द जनरल रिजर्व एंड द बैलेंस इज टेकन फ्रॉम P&L 70,000. So CRR created of 1,50,000. Now we have the premium on redemption of preference share 15,000. Before amendment it was used to write off from the capital profits, but now it is write off from P&L itself from free reserves. So entire amount of premium on redemption of preference shares will be write off from P&L. इसको आप free reserve से ही write off करेंगे, capital reserve security premium से write off नहीं करेंगे. Okay, so ये 15,000 जो है वो आपका write off हो जाएगा. So this was the question number 7. Now we will come to the question number 8, that is the redemption of debentures. चलिए question number 8. The following balances appeared in the books of Omega Limited as on 1st April 2020. 10% debenture 75 lakh, balance of DRR 2,50,000, DRR investment 11,25,000 represented by 10% rupees 11,250. Secured bonds of the government of India of rupees 100 each. So we have 10% debenture, DRR balance, DRR investment. Annual contribution to the DRR was made as per the requirement. On 31st March 2021, balance at a bank is 80 lakh before receipt of interest. Okay. Interest on debenture had already been paid. The investments were realized at par and redemption of debenture at a premium of 10% on the above date. So on 31st March you have to redeem the debentures at premium of 10%, meaning thereby 75 lakh plus 10%, which is 82,50,000. Omega Limited is an unlisted company. You are required to prepare DRR account, okay, debenture redemption reserve investment account and bank account. Only 3 accounts are required to be prepared. तो इसके अलावा अगर आप कोई अकाउंट बनाएंगे तो कोई नंबर नहीं मिलने वाले, सिर्फ टाइम वेस्ट आपका होने वाला है. ठीक है. So now as per the requirement 10% DRR is required to be created. Yes or no? So 75 lakh का 10% it comes out to be how much? 7,50,000 rupees. Yes or no? Now out of 7,50,000 we have already balance in the DRR account of 2,50,000. So DRR required is only 5 lakh. So opening balance is 2,50,000. From P&L 5 lakh will be created, and thereafter this comes out to be 7,50,000 or entire amount post redemption. The redemption date is 31st March 2021. On redemption date the entire amount will be transferred to general reserve. Yes or no? In DRR investment आपके पास 11,25,000 रुपए की investments हैं. Yes or no? This is investment is an asset. So the opening balance will be on debit side to balance PD, and in the question it is clearly given that investments were realized at par, meaning thereby there is no profit or no loss. So entire amount of investment will be sold in 11,25,000. Now after that prepare the bank account. We have the opening balance of rupees 80 lakh. Yes or no? Now on investment you will receive the interest at the rate of 10%. So because this 80 lakh is before the receipt of interest, so on 11,25,000 you will receive the 10%. This is 1,12,500. So 80 lakh 1,12,500, this is interest on DRR investment. Okay, this amount you have received from the sale of investment, this will also be transferred to bank account. Yes or no? And thereafter you have to pay the debenture holders, that is at a premium of 10%. So 75 lakh plus 10%. What will be the general entry? The first entry will be debenture to debenture holder, then debenture holder to bank. But we have to prepare only bank account. So only debenture holders will be posted in the credit side of the bank account by 82,50,000. So balance CD will be 9,87,500. So very simple question of redemption of debenture. There is nothing to be worried about this. Now coming to the question number 9, that is the investment accounts. So let's start with the question number 9. On 1st April 2019, Mr. Shyam had an opening balance of 1,000 equity shares of X Limited, 1,20,000, face value being rupees 100 each. Okay. On 5th of April, he further purchased 200 cum right share of rupees 135 each. On 8th April, cum right means including right shares, means they have the right to get right shares on this. On 8th April, the director of X Limited announced right issue in 1:6. Okay.
So we have to prepare investment account. So let's start preparing it hand by hand. इसे साथ साथ बनाते हैं. 1 अप्रैल 2019 को हमारे पास ओपनिंग है 1000 इक्विटी शेयर्स हैं 1,20,000 के, यस और नो. और उसके बाद 5 अप्रैल को हमने 200 शेयर खरीदे 135 से, तो 200 शेयर आपने खरीदे टू बैंक 135 से, कम्स आउट टू बी 77,000. इसमें ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. उसके बाद अगर हम देखें तो 8 अप्रैल को आपको 1:6 के अंदर राइट मिला, तो 1200 शेयर्स आपके पास थे, डिवाइड बाय 6 कम्स आउट टू बी 200 शेयर्स पे आपको मिला ये, यस और नो. मिस्टर श्याम वेव्ड ऑफ 100% ऑफ हिज एंटाइटलमेंट ऑफ राइट इशू इन फेवर ऑफ मिस्टर राहुल एट द रेट ऑफ 20 ईच. उन्होंने सारा का सारा 20 रुपए के हिसाब से जो है वो राहुल को दे दिया. तो उनके पास कितना आया, 200 इंटू 20 कितना आ गया, 4000 रुपीज, यस और नो. अभी एक बहुत यूनिक क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखिए यहाँ पे. All the shares held by Shyam had been acquired on come right basis and the total market price of all these shares after the declaration of rights got reduced by 3400. ये जितने शेयर्स थे इनका जो प्राइस था, ऑल दी शेयर्स जो राइट की डिक्लेरेशन के बाद जो है इनका जो प्राइस था वो 3400 रुपये से कम हो गया. तो देखो राइट्स को बेच करके जो पैसा आता है 4000 रुपीज आपके पास आए, इसका ट्रीटमेंट क्या हुआ, क्योंकि जितने श्याम के पास शेयर थे वो कम राइट बेसिस थे और टोटल मार्केट प्राइस ऑफ ऑल दी शेयर डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स के बाद 3400 रुपये कम हो गए. तो इस 4000 रुपये में से आप 3400 रुपये जो है 3400 रुपीज यूज करेंगे अपनी इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए. मतलब इस 4000 रुपीज में से आप 3400 रुपीज जो है वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अपनी कम कर देंगे और बाकी 600 रुपए जो है वो आपका P&L के अंदर जाएगा. इन दिस केस आउट ऑफ सेल प्रोसीड्स of 4000, 3400 may be applied to reduce the carrying amount of the market value and rupees 600 would be credited to the profit and loss account. बाकी 600 रुपए जो है वो profit and loss account के अंदर जाएगा. तो बाय बैंक अकाउंट यहाँ पे कितना आ गया 3400. वैसे हम सेल ऑफ राइट जनरली नहीं दिखाते, उसमें हमारी एजम्पशन रहती है कि जब वो एक्स राइट हो गए तो उसकी वैल्यू रिड्यूस नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर क्लियरली क्योंकि अमाउंट गिवन है 3400 रुपये तो इसलिए 3400 रुपये हम यहाँ पर लेकर जाएंगे. उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ एकदम क्लियर है. श्याम ने 350 शेयर बेच दिए 140 रुपये के हिसाब से, 350 शेयर्स 140 से बेचे 49,000 के, येस और नो. और एवरेज कॉस्ट क्या आएगी 120 प्लस 27 और माइनस 3400. और हमारे पास शेयर्स कितने हैं अगर देखा जाए तो 1200, तो डिवाइड बाय 1200 और हमने बेचे कितने 350 शेयर्स, तो इनटू 350 मतलब दिस प्लस दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय 1200 शेयर्स इनटू 350. तो हमारी जो कॉस्ट आ गई दैट इज 41833. हमारा प्रॉफिट आ गया 7117 का, यस और नो. तो आप देखिए बाय बैंक आपके पास इतना पैसा आया, प्रॉफिट आ गया 7117. ओके. और इसके बाद आपके पास द मार्केट प्राइस ऑफ ईच शेयर इज 125. उसके बाद जो आपके पास प्राइस है वो कितना है 125 रुपये. तो 850 को अगर आप 125 से इंटू करते हैं तो वैल्यू आती है 1,06,250. और वैसे अगर आप बैलेंस शीट ही निकाल रहे हैं तो आ रहा है 1,01,717. यस और नो. कॉस्ट जो 850 शेयर्स की आ रही है वो आ रही है 1,01,717. आप सीधे बैलेंस निकाल सकते हैं, ठीक है. इंस्टेड आप ऐसे करना चाहें ऐसे भी कर सकते हैं, बट बैलेंस भी ले सकते हैं. तो विच एवर इज लोअर पे हम शो करेंगे तो 1,01,717 पे ही आप उसे दिखा देंगे यहाँ पर, ठीक है. तो एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट अकाउंट की फॉर्म में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है. अब इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर. चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की. राम्स गोडाउन कॉट फायर ऑन 29th August 2020. द लार्ज पार्ट ऑफ द स्टॉक ऑफ गुड्स वॉज destroyed and goods costing rupees 56,350 could be salvaged. RAM provides you the following additional information. Cost of stock on 1st April 2019 3,50,250. Cost of stock on 31st March 2020 3,95,050. Purchases during the year 31st March 2020 28,39,800. Okay. Purchases from 1st April 2020 to the date of fire. Okay. This one. Cost of goods distributed as sample for advertising from 1st April 2020 to the date of fire. This, okay. This will be reduced from purchases. Cost of goods withdrawn by trader for personal use. This will be reduces from purchases. Sales for the period ended this is this. Okay. Sales of the current year up to the date of fire is this. Ram had taken the fire insurance policy of 4 lakh with an average clause. You are required to compute the amount of claim that will be admitted by the insurance
company. Okay, so it's a very simple question. If you can check, firstly we need to compute the gross profit ratio, and for that we have the entire details of 1920. You can check. So first of all, trading account will be prepared. Opening stock on 1st April 19 is 355 250. Thereafter purchases informations are given, sales information is given to you, yes or no. The closing stock on 31st March 2020 is given to you. So this comes out to be the gross profit, and you will compute the GP ratio, which comes out to be how much? 30%. Okay, now coming to the sales is 2268 here. Okay, so the gross profit of this, that is the 30% of this will be this. The closing stock will become the opening stock. The purchases are this. From this advertisement and drawings, this amount and this amount will be deducted. So this is clear to you, this is clear to you, this is clear to you, this is clear to you. This will be the value of closing stock. The closing stock is 4,41,300. So now the policy amount is less than the value of stock. Stock is 441, the policy value is 4 lakh. So average clause will be applicable, yes or no. Now out of this 4,41,300, the stock of 56,350 is salvaged, saved. So the loss is of 3,84,950. Applying the average clause, that is the 4 lakh. This is the policy value divided by value of closing stock into the value of loss. So this will be this is the amount of claim that you will get from the insurance company. Therefore claim amount will be admitted by the insurance company. So this is the question number 10, that is the of insurance claim. Now we will come to the question number 11. Now come to the question number 11. What is meant by repossession? What is the treatment for repossession in the books of hire purchaser? So we know very well what is repossession. In this, basically the hire seller takes back the goods from the hire purchaser in case of default made by the hire purchaser for the installment due. Now what is the treatment for repossession? Basically in this, the account of hire purchaser in the books of hire seller gets closed and profit and losses are computed. See, repossession is the right of seller to take back the goods sold from the hire purchaser in case of any default by the hire purchaser, and can sell the goods after recondition to any other person. The hire purchaser closes the hire vendor's account by transferring the balance of hire vendor account to hire purchase asset and then finding the profit and loss on repossession in asset account, or same you can write from hire seller point of view. Okay, now coming to the next question. 1 April 2018 Measures KMR acquired a machine on hire purchase from Measures PQR on the following terms. The cash price of the machine was 2,40,000. The down payment at the time of signing the contract was 96,000. Down payment was 96,000. The balance amount is to be paid in 3 equal installments plus interest. Okay, the interest is chargeable at the rate of 8% per annum. On the basis of this, prepare hire purchase interest suspense account and account of Measures PQR in the books of purchaser for the period of hire purchase. Okay, so let's start. What is the cash price? 240. How much down payment is made? 96. Balance in 3 equal installments. So let's start. See, this is the cash price. We have made the down payment of 96,000. So balance is 1,44,000. So it will be paid in 3 installments. So each installment will be 48,000 plus interest. Yes or no? You will compute the interest on first installment. The interest will be 1,44,000. 8% of that. Okay. This comes out to be 11,520. Now out of 144, at the time of second installment, you have already paid rupees 48,000. So on balance, 8% interest will be computed. This will be 7680. Okay, this minus this comes out to be how much? This comes out to be 96,000. Then again you have paid 48,000. So on that 8% interest will be computed. So this will 3840. तो total interest अगर आप चेक करें तो this is 23,040. Basically what happens in hire purchase interest suspense account, हम जो सारा का सारा इंटरेस्ट है एक ही बार में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं. ठीक है, तो हमने बनाया हायर परचेज इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट और आप देखिए यहाँ पर टू मेजर्स PQR अकाउंट दैट इज हायर सेलर के नाम से पूरा इंटरेस्ट ले लिया. यस और नो? और देखिए मेजर्स PQR में आपने मशीनरी खरीदी 240 से अपना क्रेडिटर बनाया और सारा का सारा इंटरेस्ट उसके अकाउंट में ले लिया. अब आपने 96,000 की डाउन पेमेंट की और उसके बाद आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट किससे आई? 48,000 प्लस 11,520. सो अमाउंट कम्स आउट टू बी 59,520. तो ये बैलेंस आ गया 107,520. ये CD जो है अगले साल क्या बनेगा आपका? BD.
अब अगेन आपने नेक्स्ट ईयर जो है 48,000 प्लस 7680, ठीक है, ये पे किया। सो दिस इज 55680। ओके, सो ये बैलेंस सीडी आ गया 51840। अगेन ये आपका बीडी बना और ये फिर आपने पे कर दिया, दिस इज 48,000 प्लस 3840। ओके, इंटरेस्ट सस्पेंस में आपने एक बार में पूरा इंटरेस्ट लिख लिया। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 11,520, तो ये सी डी बचा, सी डी विल बिकम अगेन द बी डी। सेकेंड ईयर का यहाँ पे इंटरेस्ट लिखा, फिर ये बचा सी डी, फिर ये सी डी यहाँ बी डी बना, फिर ये आपने इंटरेस्ट लिया। तो हायर परचेज इंटरेस्ट सस्पेंस में बेसिकली हम जो एंट्री रिकॉर्ड करते हैं एक बार के अंदर पूरा का पूरा जो है इंटरेस्ट जो भी बनता है वो हायर परचेज इंटरेस्ट सस्पेंस टू हायर सेलर करके एंट्री अपनी रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। उसके बाद ईयर टू ईयर बेसिस पे इंटरेस्ट टू हायर परचेज इंटरेस्ट सस्पेंस जो है वो आपका कम होता रहता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल, कुछ भी इसमें टेक्निकल नहीं है। चलिए अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही सिंपल सरल डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का क्वेश्चन। बिलो बैलेंसेस आर टेकन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ मेजर्स बिग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ओपनिंग स्टॉक 1,80,000 डिपार्टमेंट पी और डिपार्टमेंट क्यू आपके पास है। परचेजेस 13 लाख, 18 लाख 20, सेल्स 20 लाख 30 लाख। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट पी वॉज 2 लाख इंक्लूडिंग गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट क्यू फॉर ₹40,000। डिपार्टमेंट पी का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 2 लाख है, जिसमें डिपार्टमेंट क्यू के 40,000 के गुड्स इंक्लूड हैं। क्लोजिंग स्टॉक जो डिपार्टमेंट क्यू का है वो कितना है, 4 लाख इंक्लूडिंग गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट पी जो कि कितने के हैं, 60,000 के। ओपनिंग स्टॉक डिपार्टमेंट पी के जो था ये 1 लाख, इसमें 20,000 रुपये के गुड्स जो थे डिपार्टमेंट क्यू के थे। सिमिलरली ओपनिंग स्टॉक जो डिपार्टमेंट क्यू का था उसमें गुड्स 30,000 रुपये के जो थे वो डिपार्टमेंट पी से आए थे। तो ये बेसिकली जो बता रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक में दूसरे डिपार्टमेंट के इतने गुड्स थे, उस पर हमें स्टॉक रिजर्व निकालना है, ये हमें पता है। एज्यूम दैट अबव ट्रांसफर अमाउंट्स आर कॉस्ट to the transferee departments and the rate of gross profit is uniform from year to year। सिंपल भाषा में वो बोल रहा है कि जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करता है तो इनवॉइस प्राइस पे ट्रांसफर करता है और वो इसके लिए कॉस्ट बन जाती है। मतलब डिपार्टमेंट पी ने अगर क्यू को ट्रांसफर किया तो इनवॉइस प्राइस पे किया और वो उसके लिए क्या बन गई, क्यू के लिए कॉस्ट बन गई, ठीक है। और ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो सेम था पिछले साल भी इस साल भी। मतलब ओपनिंग स्टॉक पे स्टॉक रिजर्व निकालेंगे या क्लोजिंग स्टॉक पे स्टॉक रिजर्व निकालेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इस लाइन का मतलब ये है, ठीक है। ये बात आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख भी दी है। टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड वर 2,50,000 फॉर बोथ द डिपार्टमेंट। फॉर द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट आफ्टर एडजस्टिंग द अनरियलाइज डिपार्टमेंटल प्रॉफिट्स इफ एनी, ठीक है। वो तो है ही, अनरियलाइज डिपार्टमेंटल प्रॉफिट स्टॉक रिजर्व निकालेंगे तो बहुत ही सिंपल है। ये देखते हैं, सबसे पहले हम डिपार्टमेंटल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक मेंशन करते हैं। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स भी आपको गिवन है 20 लाख 30 लाख, ठीक है। उसके बाद आपका आप देखिए क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे 2 लाख का, यहाँ पे 4 लाख का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है ये बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 8 लाख एंड 15 लाख, ठीक है। ये ग्रॉस प्रॉफिट आप यहाँ ट्रांसफर करेंगे 8 लाख एंड 15 लाख, ठीक है। इसके बाद जो आपके सेलिंग एक्सपेंसेस हैं 2,50,000, इसको सेल्स रेशियो में दैट इज 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो 1 लाख और 1,50,000, तो ये आपके प्रॉफिट्स आ गए। अब ये प्रॉफिट्स आप जो है एक जनरल P&L बनाइए, वहाँ ट्रांसफर कर दीजिए। अब आपको निकालना है स्टॉक रिजर्व। तो देखिए बड़ा ही सिंपल सरल आसान भाषा में आप इसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी ग्रॉस प्रॉफिट जो है उसकी परसेंटेज देखिए। यहाँ पे 8 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट था 20 लाख की सेल पे, तो 8 लाख बाय 20 लाख 40% है। यहाँ 15 लाख का था ऑन 30 लाख की सेल, तो दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच, 50%। यस और नो, 15 लाख ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ 30 लाख, सो दिस इज 50%। नाउ सी वी विल कंप्यूट द स्टॉक रिजर्व। सी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट पी including goods transferred from department Q, meaning thereby in this closing stock of department P there are certain units which have been transferred by department Q and department Q has earned the profit on the same, yes or no. Similarly in the closing stock of department Q there are certain units on which department P has earned something, and same way for opening stock. So what they have done, यहाँ पर इन्होंने एक शॉर्टकट लिया है। अभी तक हम क्या करते थे कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता था उसका स्टॉक रिजर्व डेबिट साइड लेते थे, ओपनिंग का क्रेडिट साइड लेते थे। तो इन्होंने ये ना करके सीधे डिफरेंस पे ही निकाल लिया। टू स्टॉक रिजर्व डिपार्टमेंट पी का निकाला जैसे, ठीक है। तो अब डिपार्टमेंट पी का कैसे निकाला,
कितने के क्लोजिंग स्टॉक में गुड्स थे यहाँ 40,000 के, और ओपनिंग में कितने के थे 20 के। देख रहे हो आप यहाँ 20 और यहाँ पर आपका कितना है 40, तो 40 माइनस 20 सीधे जो डिफरेंस है वो ले लिया। आप समझ रहे हैं, ये देखिए 40 माइनस 20 सीधे वो डिफरेंस जो है वो ले लिया गया। आप समझ पा रहे हैं। अभी तक हम ये करते हैं, अगर हम पुराने तरीके से तो यहाँ स्टॉक रिजर्व लेते क्लोजिंग पे, यहाँ ओपनिंग पे बात वही पड़ती। तो 40 माइनस 20, अब ये डिपार्टमेंट पी का स्टॉक है, ठीक है। डिपार्टमेंट पी के स्टॉक में डिपार्टमेंट क्यू की इतनी यूनिट्स थी और उस पर कमाया किसने होगा, डिपार्टमेंट क्यू ने। तो हमें जीपी रेशो किसकी लेनी है, क्यू की लेनी है, विच इज 50%। तो 50% ऑफ द डिफरेंस दिस कम्स आउट टू बी 10,000, ठीक है। और सिमिलरली अगर हम देखें तो यहाँ पर 60,000 माइनस 30,000, 60,000 माइनस 30,000, उस पर वी विल कंप्यूट 40%, क्योंकि जो डिपार्टमेंट पी था उसका ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 40% था। तो दिस इज 12,000, तो ये आपके नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही सरल सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी इसमें टेक्निकल नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन हम आईसीआई मॉड्यूल में ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। एक बहुत ही अच्छा यूनिक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 ब्रांच अकाउंटिंग का। थोड़ा इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, एक नॉर्मल फॉर्मेट से हटके अलग है, सो प्लीज बी केयरफुल व्हाइल डूइंग द क्वेश्चन नंबर 13। अल्फा लिमिटेड हैज अ रिटेल शॉप अंडर द सुपरविजन ऑफ ए मैनेजर। द रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एट सेलिंग प्राइस इज कांस्टेंट एट 25% थ्रू आउट द ईयर to 31st March 2020. Okay. Branch manager is entitled to a commission of 10% of the profit earned by his branch, calculated before charging his commission, but subject to a deduction from such commission equal to 25% of any ascertained deficiency of branch stock. तो ब्रांच मैनेजर को 10% कमीशन दिया जाएगा, प्रॉफिट जो भी अर्न किया है उसकी कमीशन चार्ज, मतलब कमीशन चार्ज करने से पहले बिफोर है, मतलब 10/100 सीधे करना है। आफ्टर चार्जिंग होता तो 10/110 करते। बट अगर किसी भी तरीके की स्टॉक का नुकसान हुआ ब्रांच में तो उसके 25% जो है, जितना भी स्टॉक का नुकसान हुआ उसकी कमीशन में से काटा जाएगा। ऑल गुड्स वर सप्लाई टू द ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस। कुछ डिटेल्स आपको गिवन है, ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट, गुड सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट, सेल्स, मैनेजर कमीशन इतनी पे हो चुकी, चार्जेबल एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक सेलिंग प्राइस पे आपको गिवन है, ठीक है। फ्रॉम द अबव डिटेल्स यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कमीशन ड्यू टू मैनेजर फॉर द ईयर एंडेड। कितनी कमीशन ड्यू है। तो जनरली इस तरह का क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता, ब्रांच अकाउंट देखने को मिलता है बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर उसने कमीशन अमाउंट आपसे कंप्यूट करवाया है। अब सबसे पहले अगर देखें, द रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एट सेलिंग प्राइस इज कांस्टेंट 25%, मतलब जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना है 25% ऑफ सेलिंग प्राइस है, यस और नो। 25/100 ऑफ सेल्स अगर है कोई चीज, सो वी नो वेरी वेल इट विल बी 25/75 ऑफ कॉस्ट, यस और नो, दैट इज 1/4 ऑन सेल्स है, तो वी कैन सिंपली से इट विल बी 1/3 ऑन कॉस्ट, यस और नो। अब यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक आपके पास है 74736 का और ये कॉस्ट पर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ये देखने के लिए कि कितना स्टॉक की डेफिशिएंसी हुई है, ठीक है। तो देखिए ब्रांच स्टॉक अकाउंट या तो आप इनवॉइस प्राइस पे बना लीजिए या आप उसे कॉस्ट पे भी बना सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए अब यहाँ पर जैसे ओपनिंग स्टॉक है ये कॉस्ट पे गिवन है, तो अगर आप कॉस्ट पे बनाते हैं तो यू विल टेक 74736, बट अगर इनवॉइस प्राइस पे लेते हैं तो उसमें आप 1/3 ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि प्रॉफिट 1/4 ऑन सेल था तो 1/3 ऑन कॉस्ट, तो वो आप पे है, आप एट कॉस्ट बना इनवॉइस प्राइस, फाइनल आंसर विल रिमेन सेम, ठीक है। तो इनवॉइस वाले की फिगर ब्लैक में है और कॉस्ट वाले की फिगर ग्रीन में है, ठीक है। सेम वे गुड्स सेंड टू ब्रांच 289680 है, 289680, अब उसे आप इनवॉइस प्राइस पे लेते हैं तो 386240 आ जाएगा, नहीं तो इसी पे लेते हैं। सेल्स आपको गिवन है कितनी 361280। अब अगर कॉस्ट पे बना रहे हैं तो यू विल नॉट टेक द सेल्स, यू विल टेक द कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स लेना पड़ेगा। उस केस में 361280 में से जो भी इसमें आपका प्रॉफिट इंक्लूड है दैट इज 25% ऑफ दिस, तो ये आपको जो है रिड्यूस करना पड़ेगा, तो ये आपका कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक सेलिंग प्राइस पे है, इनवॉइस पे बना रहे हैं तो उस पे लिख दीजिए, नहीं तो अगेन आप जो है 123328 में से 25% वैल्यू जो है वो रिड्यूस करेंगे, गॉट इट। तो ये डेफिशिएंसी आ जाएगी, अगर इनवॉइस पे लेते हैं तो ये आएगी और कॉस्ट पे लेते हैं तो 960। तो आपको पता लग गया कितना नुकसान हुआ स्टॉक का। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं अपना ब्रांच अकाउंट हम कंप्यूट करते हैं ये जानने के लिए कि नेट प्रॉफिट कितना है। भाई ब्रांच अकाउंट तो क्योंकि कमीशन जो है वो तो 10%
ऑफ प्रॉफिट है। प्रॉफिट कहाँ से निकलेगा वो तो आपको ब्रांच अकाउंट से ही पता लगाना पड़ेगा, तो वो आप इनवॉइस प्राइस पे ही बना लीजिए, ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। ओपनिंग स्टॉक आपने लिया, सेल्स ली, क्लोजिंग स्टॉक लिया, गुड्स इनटू ब्रांच लिया, इस पे आपने स्टॉक रिजर्व डाला, दैट इज 1/3 ऑफ 74736। फिर ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इस पे आपने स्टॉक रिजर्व लिया, दिस इज 30382, ठीक है, 1233828 का 25%, गॉट इट। एक्सपेंसेस आपको गिवन ही है 49120, वो आपने यहाँ पर डाले, ओके। फिर ये गुड्स इनटू ब्रांच, इसकी लोडिंग आपने ली, दैट इज 1/3 ऑफ 289680, दिस इज 96560। तो ये आपके यहाँ पर नेट प्रॉफिट आ जाएंगे 4240, ठीक है। अब इस पे 10% कमीशन जो है वो कंप्यूट होगी, यस और नो। अब कमीशन तो निकल गई, अब इसको जो ब्रांच मैनेजर है 25% ऑफ डेफिशिएंसी बियर करना है, यस और नो। तो अब डेफिशिएंसी का 25% भाई स्टॉक जो है वो कॉस्ट पे मेजर होता है, स्टॉक इज ऑलवेज मेजर एट कॉस्ट, तो उसका 25% बियर करना है। तो अगर आपने यहाँ कॉस्ट पे बनाया हुआ है तो सीधे आपकी 960 कॉस्ट आई थी, आप सीधे 960 का 25% ले सकते हैं, विच विल बी 240। और अगर आपने इनवॉइस पे बनाया था इसको तो 1280 आया था, पहले आप उसे कॉस्ट पे लाइए, इसलिए उसका 75 निकाला, फिर उसका 25% लीजिए, तो बात वही पड़ेगी जैसे मर्जी कीजिए। तो कमीशन जो नेट देनी है 3784, जिसमें से वी हैव ऑलरेडी पेड द अमाउंट ऑफ ₹2400, सो जो बैलेंस ड्यू है दैट विल बी 1384, इतना बैलेंस हमें कमीशन का और देना है। सो दिस इज द वंडरफुल क्वेश्चन फ्रॉम ब्रांच अकाउंटिंग। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। राम कैरिड ऑन बिजनेस एज रिटेल मर्चेंट, he has not maintained regular accounts book, however he always maintained ₹10,000 in cash and deposited the balance into bank account. He informed you that he has sold goods at profit of 25% on sale. तो देखिए इतनी बात समझ में आती है कि अगर 10,000 कैश मेंटेन करता है मतलब क्लोजिंग बैलेंस कैश का 10,000 होगा, इस लाइन का मतलब बहुत ही सिंपल। और ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल है, 1/4 ऑन सेल, तो 1/3 ऑन कॉस्ट। फिर आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन गिवन है, कैश इन हैंड, सन्ड्री क्रेडिटर्स, कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक इन ट्रेड, राम्स कैपिटल, क्लोजिंग फिगर्स ही निकालनी है आपको, बाकी सब गिवन है। कैश एट बैंक यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, मतलब ये आपका ओवरड्राफ्ट है और ये आपके लिए फेवरेबल बैलेंस है, ठीक है। आपकी बुक्स में क्रेडिट है मतलब ओवरड्राफ्ट है। एनालिसिस ऑफ द बैंक पासबुक रिवील्स द फॉलोइंग, पेमेंट टू क्रेडिटर्स को बिजनेस एक्सपेंस डेटर्स से आए, लोन 1 लाख का है जो कि 1 अक्टूबर को लिया 10% पे, कैश डिपॉजिट हुआ 1 लाख। इसके बाद इन्फॉर्म किया गया कि पेड टू क्रेडिटर फॉर गुड्स 20,000 इन कैश एंड सैलरीज 40,000 इन कैश, ही हैज विड्रॉन 80,000 in cash for personal expenses. During the year, Ram had not introduced any additional capital. राम ने कोई additional capital introduce नहीं करी। सरप्लस कैश अगर कुछ है तो उसे कैश सेल्स मान लेना। सारी परचेजेस क्रेडिट पे हुई है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग इन P&L फॉर द ईयर एंड। सो सबसे पहले विल स्टार्ट मेकिंग द वर्किंग नोट्स, ओके। So first of all we have debtors account. The opening balance is given to us 1 lakh. The closing balance is again 3,50,000. Yes or no? This is given to us, and receipt from debtors are 7,50,000. So on the basis of this we can compute the credit sales. This is rupees 10 lakh. Similarly we will compute the credit sales. See, creditors हमारे पास opening है 40, closing है 90, और उसके बाद जो पेमेंट हुई है वो कितनी हुई है, 7 लाख हुई है। तो आप देखिए 7 लाख पेमेंट, ओपनिंग क्लोजिंग फिगर्स हमने यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, आपको ये भी गिवन था कि क्रेडिटर्स को हमने 20,000 रुपये कैश में पे किए हैं, तो उसकी एंट्री हमने पोस्ट की, तो परचेजेस आपकी आ गई 7,70,000, ठीक है। तो ये 2 अकाउंट्स होपफुली आपको क्लियर हैं, इसके अंदर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद उसने आपको एक चीज़ बोले था कि बेसिकली यहाँ पर सरप्लस कैश अगर कुछ है तो उसे कैश सेल्स मान लेना, लेकिन परचेजेस क्रेडिट पे। तो हमें सबसे पहले अपनी कैश बुक बनानी पड़ेगी देखने के लिए कि कहीं कैश सेल्स तो नहीं आ रही हैं, यस और नो। तो आइए बनाते हैं कैश एंड बैंक अकाउंट, ओपनिंग बैलेंसेस। उसके बाद जो जो चीज़ें हमारे पास गिवन है, सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ कॉन्ट्रा एंट्री थी कैश डिपॉजिटेड 1 लाख की, तो उसकी कॉन्ट्रा एंट्री यहाँ पर की गई, ठीक है। सैलरीज की इन्फॉर्मेशन थी कि सैलरीज पे किया, लास्ट लाइन के अंदर आप देखिए 40,000 रुपीज़, ठीक है। 20,000 क्रेडिटर्स को कैश में पे किया, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग्स करी थी 80,000 रुपीज़ की, यस और नो। तो ये आपका कैश में एक्सपेंसेस हुए। फिर बैंक से अगर बात करूँ, क्रेडिटर्स को हमने 7 लाख पे किए थे, बिजनेस एक्सपेंसेस पे किए थे, डेटर्स से हमारे पास पैसा आया, लोन हमने लिया 1 लाख का। तो अब यहाँ पर अगर हम ये सारी इन्फॉर्मेशन देखें, कैश हमारा क्लोजिंग बैलेंस 10,000 है, ये इन्फॉर्मेशन उसने हमें फर्स्ट लाइन में बता दी थी।
तो कैश में अगर देखें तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आती है जिसको हम क्या मान लेंगे, कैश सेल्स, दैट इज 2,40,000, और यहाँ हमारी बैलेंसिंग फिगर जो है 80,000 रुपीज़ ही आएगी। ये सुनो, बैलेंस ईडी में बैलेंस निकलता है तो उसे बैलेंसिंग फिगर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब कैश सेल्स 240, क्रेडिट सेल्स आपकी कितनी थी 10 लाख, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस टोटल सेल्स आपकी आ गई 1240। दीज आर द परचेजेस। ओपनिंग स्टॉक बैलेंस आपको गिवन ही है, दैट इज 2,80,000, यू कैन चेक। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल है तो 12,40 का 25% 3,10,000, तो क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आपकी आ जाएगी। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ लिखेंगे। इसके बाद जो भी एक्सपेंसेस है, सैलरीज, बिजनेस एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन। देखिए क्योंकि आपने 1 अक्टूबर को लोन लिया था तो 6 महीने का इंटरेस्ट जो है वो ड्यू हो जाता है, पेमेंट आपने नहीं करी, आउटस्टैंडिंग रहेगा, तो 1 लाख का 10% 6 मंथ्स के लिए कितना हो गया 5,000। सो नेट प्रॉफिट कम्स आउट टू बी 1,45,000। अब इसके बाद आप अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। सारी इन्फॉर्मेशन मोटी मोटी आपको गिवन ही है, कैश इन एंड क्रेडिटर्स, कैश एट बैंक, सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्लोजिंग स्टॉक आपने निकाल ही लिया। राम्स कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करके लेस ड्राइंग्स करके आपके पास निकल आएगी। तो देखिए सारी चीज़ें, राम कैपिटल, ओपनिंग, प्रॉफिट, ड्राइंग्स आप लेस कर देंगे। ठीक है, लोन आपने लिया था, उस पर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है कितना 5,000, तो आप लोन 1 लाख, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 5,000 या कंबाइंड अमाउंट भी दिखा सकते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स थे 90, तो ये आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाती है। तो बहुत ही सिंपल सरल क्वेश्चन ऑन अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो ऐसा है, अदरवाइज ना आए, क्योंकि समझ में नहीं आएगा आपको एक बार में लिखना क्या। विद रिगार्ड्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट नेम एनी 5 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एलिमेंट्स। 5 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है और 5 एलिमेंट्स बताने। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और इक्विटी। और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए, येस और नो, एलिमेंट्स होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो क्लास 11th के अंदर आप करते थे। तो इतना बेसिक क्वेश्चन की समझ में ही ना आए कि लिखना क्या है। इसके बाद अमन स्टार्टेड द बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020 विद ₹24 लाख रिप्रेजेंटेड बाय 1,20,000 यूनिट्स ऑफ 20। 1,20,000 यूनिट्स किसी गुड्स के खरीदे 20 से और 24 लाख रुपए बिजनेस में लगाए। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर उसने सारा स्टॉक 30 रुपये के हिसाब से बेच दिया। अपनी कैपिटल को सेम रखने के लिए कितना अमाउंट मैक्सिमम जो है वो विड्रॉ कर सकता है। तो देखो उसने 1,20,000 यूनिट्स खरीदे 20 रुपये के हिसाब से 24 लाख, और उसने 30 रुपये से बेच दिए, मतलब 36 लाख रुपीज़ की सेल कर दिए, ये सोनो। और इनिशियल कैपिटल उसकी 24 लाख थी, तो 12 लाख जो है अगर वो विड्रॉ कर लेता है तो भी उसकी कैपिटल सेम रहेगी। तो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इतना टेक्निकली थोड़ा सा लिख दिया जाता है कि आपको समझ में नहीं आता कि किस तरीके से लिखना है। तो वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। चलिए अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं आरटीपी में इसके क्वेश्चन, क्योंकि उससे आइडिया मिलता है किस तरह के क्वेश्चन इस बार आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द ड्राफ्ट रिजल्ट्स ऑफ सूर्या लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 प्रिपेयर्ड ऑन द hitherto followed accounting policies and presented for perusal of board of directors shows a deficit of ₹10 करोड़। तो सीधी सी बात यह है कि जब ड्राफ्टेड फाइनेंशियल्स बनाए गए तो उसमें 10 करोड़ रुपए का जो है लॉस देखने को आ रहा है। द बोर्ड इन कंसल्टेशन विद द मैनेजिंग डायरेक्टर डिसाइडेड टू वैल्यू ईयर एंड इन्वेंट्री एट वर्क कॉस्ट 50 करोड़ इंस्टेड ऑफ थर्ड मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट प्राइम कॉस्ट। मतलब जो उनकी ओल्ड प्रैक्टिस थी कि वो इन्वेंट्री को प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू करते थे, उस हिसाब से वैल्यू 30 करोड़ आती। अब उन्होंने कहा कि नहीं, हम इन्वेंट्री जो है वो वर्क कॉस्ट पे कंप्यूट करें, दैट इज फैक्ट्री कॉस्ट पे, और इन्वेंट्री की वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक की 50 करोड़ दिखाए। देखिए क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा दिखाने से क्या होता है, सीधे सीधे प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं। तो क्योंकि उन्होंने 30 करोड़ अगर दिखाते हैं, 30 करोड़ से 50 करोड़ कर देते हैं, तो होता क्या है 20 करोड़ का अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा दिया, ठीक है, तो इधर आपके प्रॉफिट्स जो है वो 20 करोड़ से बढ़ जाएंगे, यस और नो। तो जो 10 करोड़ का लॉस आ रहा है, अगर 20 प्रॉफिट जुड़ गए तो 10 करोड़ का प्रॉफिट दिखेगा बुक्स में। तो वो इसलिए ये मैनिपुलेशन कर रहे हैं। एज चीफ अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी और आस्क्ड बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर टू ड्राफ्ट द नोट्स ऑन अकाउंट्स फॉर इंक्लूजन इन द एनुअल रिपोर्ट फॉर 1920। तो इस चीज़ को कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंक्लूड किया जाए और उसके लिए एक ड्राफ्ट नोट्स क्या बनना चाहिए। देखिए बड़ा क्लियर है कि AS1 क्या कहता है कि अगर आप किसी भी तरीके से अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज कर रहे हो, ये आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी है कि पहले आप स्टॉक प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू करते थे, अब आप वर्क कॉस्ट पे कर रहे हो। देखिए वर्क कॉस्ट पे कर रहे हैं, उसमें फैक्ट्री ओवरहेड जुड़ जाता है, इस वजह से वैल्यूएशन ज़्यादा हो गया। तो
आप इस चीज को, क्योंकि आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रहे हो, तो AS1 कह रहा है कि अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हैं और उससे आपका मटेरियल इफेक्ट आ सकता है, तो उस मटेरियल इफेक्ट को बाय वे ऑफ नोट्स टू अकाउंट्स आपको रिप्रेजेंट करना होता है। तो देखिए वही चीज सबसे पहले टेक्स्ट फॉर्म में आपको लिखनी है। क्या? एनी चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज अ मटेरियल इफेक्ट, इस चीज को अंडरलाइन करके आइएगा एग्जाम में, इन द करंट पीरियड और विच इज रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू हैव अ मटेरियल इफेक्ट इन लेटर पीरियड। जरूरी नहीं है कि करंट पीरियड में, लेटर पीरियड में भी हो सकता है, तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है। इन द केस ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज अ मटेरियल इफेक्ट इन द करंट पीरियड, द अमाउंट बाय विच any item in the financial statement is affected by such change should also be disclosed। सिर्फ ये नहीं है कि आपने लिख दिया कि हमने अपना मेथड चेंज किया, आपको उसका अमाउंट भी एसरटेन करना होता है और उस अमाउंट को भी जो है डिस्क्लोज करना होता है। वेयर सच अमाउंट इज नॉट एसरटेनेबल, बट अगर ये अमाउंट आप एसरटेन नहीं कर पा रहे होली या पार्ट में, तो इस फैक्ट को भी इंडिकेट करना होता है कि क्या रीजन है कि आप उस अमाउंट को डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे हैं। अकॉर्डिंगली द नोट्स ऑन अकाउंट शुड प्रॉपर्ली डिस्क्लोज द चेंज एंड इट्स इफेक्ट। तो देखिए टेक्स्ट आपको प्रॉपर लिखना है, अगर आप टेक्स्ट लिखने में कंजूसी करोगे तो फिर बात जो है गड़बड़ हो जाती है। अब इसका नोट्स टू अकाउंट्स देखिए किस तरीके से ड्राफ्ट करना है। ड्यूरिंग द ईयर इन्वेंट्री हैज बीन वैल्यूड एट फैक्ट्री कॉस्ट अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ वैल्यूइंग इट एट प्राइम कॉस्ट एज वाज द प्रैक्टिस टिल लास्ट ईयर। दिस हैज बीन डन टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ मोर capital intensive method of production on account of heavy capital expenditure during the year। देखिए बड़ा सिंपल उन्होंने क्या किया, एक अपनी एक्सप्लेनेशन दे दी कि पहले हम प्राइम कॉस्ट पे करते थे, अब हम फैक्ट्री कॉस्ट पे कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, दिस हैज बीन टू टेक कॉग्निजेंस मतलब डिटेल नॉलेज ऑफ द मोर कैपिटल इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर। कि हमने इस साल बहुत ज्यादा हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, उससे ज्यादा ओवरहेड्स आ गए हैं, इस वजह से हम सारा वैल्यूएशन चेंज कर रहे हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस चेंज ईयर एंड इन्वेंट्री जो है वो वैल्यू हुई 50 करोड़ रुपए से, जिससे प्रॉफिट जो है वो 20 करोड़ रुपए का इंक्रीज हो गया, जो मैं आपको यहाँ समझा रहा था। तो ये इसके आंसर्स बहुत अच्छे से लिखने, तभी आपको 4 आउट ऑफ 4, 5 आउट ऑफ 5 इसमें मिलेंगे। नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के ऊपर। द इन्वेंट्री ऑफ रिच लिमिटेड एज ऑन दिस कंपनीज ऑफ प्रोडक्ट ए के 200 यूनिट एंड प्रोडक्ट बी के 800 यूनिट। इन्वेंट्री रिच लिमिटेड के 31 मार्च 2020 को बता रहा है कि प्रोडक्ट ए के 200 यूनिट है, प्रोडक्ट बी के 800 यूनिट है। कॉस्ट की डिटेल्स आपको गिवन है। प्रोडक्ट ए में मटेरियल कॉस्ट, वेजेस एंड ओवरहेड कॉस्ट कितनी है? 40 रुपए पर यूनिट, 30 रुपए पर यूनिट, 20 रुपए। हर यूनिट को 110 रुपए में बेचा जाता है। सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? 10% ऑफ द सेलिंग कॉस्ट। ओके। प्रोडक्ट बी में मटेरियल कॉस्ट, वेजेस सब आपको गिवन है। नॉर्मल सेलिंग रेट उसका 150 है। हाउएवर ड्यू टू डिफेक्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग 800 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी वर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट 70। उसे हम 70 रुपए के हिसाब से बेच पाएंगे, मतलब रिलायजेबल वैल्यू पे। क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी। देखिए सिंपल सी चीज है, कॉस्ट और रिलायजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर पे आप इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं, तो सबसे पहले प्रोविजन लिखेंगे, शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रिलायजेबल वैल्यू। जो रेलिवेंट है वो लिखना है, कोई ऐसा नहीं है उसकी लेंथ मैटर करती है। अब देखो यहाँ इतना लिखा, यहाँ आपने इतना भी लिखा तो भी बात बन गई। तो लेंथ कभी मैटर नहीं करती, क्या लिखना जरूरी है वो मैटर करता है, ठीक है ना। अब प्रोडक्ट ए में देखिए मटेरियल कॉस्ट कितना है बच्चे? 40 रुपए है। फिर वेजेस का है 30 रुपए, ओवरहेड है 20 रुपए। तो आप कॉस्ट अपनी निकाल सकते हैं, मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड, यूनिट से आपने इसे इनटू कर दिया, तो ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई कितनी? 18,000 रुपीज, ठीक है। अब रिलायजेबल वैल्यू की अगर आप बात करते हैं, यहाँ पर देखिए 110 था, 10% सेलिंग कॉस्ट आएगी, मतलब 99 उसकी रिलायजेबल वैल्यू। तो 99 इंटू 200 दिस कम्स आउट टू बी 19,800। तो इन्वेंट्री जो है वो लोअर ऑफ कॉस्ट रिलायजेबल वैल्यू, मतलब आप इसे 18,000 का वैल्यू करेंगे। सेम वे प्रोडक्ट बी में आते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ मटेरियल कॉस्ट और वेजेस है 45, 35, तो 45 इंटू 800, 35 इंटू 800, तो ये आ गया 64,000। रिलायजेबल वैल्यू कितनी है वो आपको गिवन है, देखिए यहाँ पर कि 70 के हिसाब से ही हम उसे बेच पाएंगे। तो 800 इंटू 70 कम्स आउट टू बी 56,000। नाउ लोअर ऑफ कॉस्ट रिलायजेबल वैल्यू, सो इट विल बी वैल्यूड एट 56,000। नाउ हेयर वी विल कंसिडर द कॉस्ट पार्ट, हेयर वी विल कंसिडर द रिलायजेबल वैल्यू। तो दोनों का जो सम है दिस विल बिकम 74,000। ओके, सो वेरी गुड क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द फॉलोइंग इन लाइन विद द प्रोविजंस ऑफ AS10। Trozon Limited operates a major chain of supermarkets all over India. It acquires a new store in Pune which requires significant renovation expenditure. It is expected that renovation will be done in 2 months, during which the store will be closed. The budget for the period, including expenditure related to construction and remodeling, cost 18 lakh, salaries to staff 2 lakh who will be preparing the store before its opening, and related utilities cost 1.5 lakh is prepared. The cost of salaries of the staff and utilities are operating expenditure that would be incurred even after the opening of the supermarket. What will be the treatment of all these expenditures in the books of accounts?
तो देखिए एज पर AS10 ये जो 18 लाख है इसको तो आप कैपिटलाइज करेंगे, लेकिन सैलरीज टू स्टाफ और रिलेटेड यूटिलिटीज कॉस्ट जो है, जो कि एक रिकरिंग नेचर का एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग नेचर का एक्सपेंस है, इसको आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे। तो देखिए should capitalize the cost of construction and remodeling because they are necessary to bring the store to the condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended। जो सबसे important line है, ये AS का टेक्स्ट है। इवन आप इसको ऐसे ना करके ऐसे भी लिख सकते हैं that as per AS10 that is property plant and equipment all the cost that are necessary to bring the store to the condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended should be capitalized। ठीक है। Accordingly, the supermarket cannot be opened without incurring the remodeling expenditure. Therefore, 18 लाख जो है वो आपको cost of asset मानना पड़ेगा। लेकिन cost of salaries and utilities जो है वो operating expenditures हैं, जो कि opening के बाद भी होंगे। Therefore, these costs are not necessary to bring the store to the condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management and should be expense। तो main चीज जो है वो आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक है, जो कि AS10 का टेक्स्ट है। उसके बाद आप फैक्ट्स पाएंगे और लास्ट में आप कंक्लूड करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, ABC लिमिटेड इज सेटिंग अप अ न्यू रिफाइनरी आउटसाइड द सिटी लिमिट्स इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिफाइनरी इन इट्स ऑपरेशन। ABC लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू incur expenditure on the construction development of railway siding, road and bridge. Though ABC Limited incurs the expenditure on construction development, it will not have ownership right on these items, and they are also available for use to other entities and public at large. Can ABC Limited capitalize expenditure incurred on these items as property, plant and equipment? देखिए इस बड़ी सिंपल सी चीज़, आप ये समझिए कि AS10 का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है। वो सिंपल दो बातें कहता है कि अगर ये प्रोबेबल है कि एंटिटी को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे उस पर्टिकुलर PPE से, और सेकंड उसकी कॉस्ट को आप रिलायबली मेजर कर सकते हो, तो आप उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज करेंगे। यही कहता है AS10। देखिए AS10 क्या कहता है कि आप उसे बुक्स में कब लाएंगे, इट इज़ प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएंगे और कॉस्ट जो है रिलायबली मेजर की जा सकती है। अब इतना इसमें देखने की जरूरत नहीं, मेन आपने लिख दिया कि AS10 क्या कहता है। उसके बाद अकॉर्डिंगली यहाँ पर इट इज़ वेरी क्लियर कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे। आप एक रिफाइनरी वहाँ पर सेटअप कर रहे हैं जिसके लिए आपको रेलवे साइडिंग, रोड्स एंड ब्रिज बनाने हैं, और उससे कहीं ना कहीं आपकी एंटिटी को फ़ायदा होगा और कॉस्ट भी आप उसकी मेजर कर सकते हैं। ओनरशिप राइट्स हैं या नहीं है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो अकॉर्डिंगली आप इसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो फ्रॉम दिस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इन द गिवन केस एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन दीज असेट्स दैट इज दिस शुड बी कंसिडर्ड एज कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रिफाइनरी, एंड अकॉर्डिंगली आप इसको जो है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में PP का पार्ट बना सकते हैं। तो मेन कंपोनेंट जो है वो ये है। यहाँ पर इन्होंने जो लिखा हुआ है वो ये कि आप इंडिविजुअल कॉस्ट को असरटेन नहीं कर पाएंगे, तो बेटर है कि आप उसे रिफाइनरी कॉस्ट के अंदर ले लें। मेन जो कॉन्टेक्स्ट आपको करना है इसमें ये और ये अच्छे से आपको देखना है। दिस पार्ट इज नॉट सो रेलिवेंट। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 18। क्लासीफाई द फॉलोइंग आइटम्स इनटू मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। तो ये 11 का क्वेश्चन है। मॉनेटरी क्या होता है, जो कि कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा या कैश फॉर्म में हो। शेयर कैपिटल नॉन मॉनेटरी, 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 नॉन मॉनेटरी, क्योंकि इन दोनों की तो इंटेंशन ही हमारी कैश में होती है कन्वर्ट करना, इसकी हमारी इंटेंशन कैश में कन्वर्ट करना नहीं होती। नेक्स्ट पार्ट है ट्रेड पेबल्स ऑफ कैट लिमिटेड इंक्लूड अमाउंट पेबल टू JBB लिमिटेड ₹10 लाख रिकॉर्डेड एट द प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन $1.80 का। द एक्सचेंज रेट ऑन बैलेंस शीट डेट जो था वो 85 हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नीडेड एज पर AS11 इन द बुक्स ऑफ कैट लिमिटेड। देसी भाषा में ट्रेड पेबल था आपका 10 लाख रुपए का। उस समय $1.80 का था, तो मतलब आपने फॉरेन में कोई ट्रांजेक्शन करी होगी, डिवाइड बाई 80 करके $12,500 ही आपका आता है। ऑन बैलेंस शीट डेट जो डॉलर का रेट है 85 रुपीज़ हो गया, तो आपकी लायबिलिटी जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो 85 माइनस 80 मतलब 5 रुपीज़ से जो है आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, एंड दिस अमाउंट कम्स आउट टू बी 62,500। यस और नो, इतने से आपकी लायबिलिटी बन गई। तो इसे आप SOPL में अपना रिकॉग्नाइज करेंगे। इनिशियल रिकॉग्निशन हुआ 80 रुपीज़ से, बैलेंस शीट डेट पे रेट आपका 85 हो गया, तो आपको लॉस हुआ 62,500 का, जिसको आप P&L में लेके जाएंगे और क्रेडिट कर देंगे ट्रेड पेबल्स को। ठीक है जी, तो बहुत ही सिंपल सरल क्वेश्चन एकदम आपका AS11 पे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हाइजीन लिमिटेड हैड रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ ₹50 लाख इन 2012 फ्रॉम अ स्टेट गवर्नमेंट टुवर्ड्स इंस्टॉलेशन ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल मशीनरी ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। The company, however, failed to comply with the said conditions and consequently was required to refund the said amount in 2020. तो गवर्नमेंट ग्रांट रिफंडेबल हो गए। ठीक है,
द कंपनी डेबिटेड द सेड अमाउंट टू इट्स मशीनरी अकाउंट इन 2020 ऑन पेमेंट ऑफ द सेम। तो रिफंड करने पे जितना रिफंड हुआ उस सारा मशीनरी की वैल्यू बढ़ा दी। ठीक किया, कोई गलत होना क्या। इट ऑल्सो रिवर्क द डेप्रिसिएशन फॉर द सेड मशीनरी फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स परचेज एंड पास नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्रीज इन द ईयर 2020 टू इनकॉर्पोरेट द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ द सेम। ये गलत किया। आप उस पर अगर आपने गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड किया है, मशीनरी की वैल्यू आपने इंक्रीज कर दी, तो डेप्रिसिएशन रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं एडजस्ट होता, प्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट होता है। तो ये ट्रीटमेंट बहुत गलत किया है। स्टेट वेदर द ट्रीटमेंट डन बाय द कंपनी इज करेक्ट और नॉट। तो पहला ट्रीटमेंट ठीक था कि आपने मशीनरी की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, बट नेक्स्ट ट्रीटमेंट इज नॉट एज पर AS 12। तो वही चीज़ यहाँ पर देखिए, ग्रांट्स मिली टुवर्ड्स इंस्टॉलेशन, हाउएवर द अमाउंट ऑफ ग्रांट हैज़ टू बी रिफंडेड। तो रिक्वायर्स द अमाउंट रिफंडेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट इज रिकॉर्डेड बाय इंक्रीजिंग द बुक वैल्यू ऑफ असेट। दिख रहा है आपको? ठीक है। और बाय रिड्यूसिंग द कैपिटल रिजर्व और द डेफर्ड इनकम बैलेंस। देखिए, जब आप AS का टेक्स्ट लिख रहे हैं ना, तो आप दोनों ट्रीटमेंट बताएं। ये नहीं है, देखो AS 12 के हिसाब से आप दो चीज़ें कर सकते हो। गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड होती है, अगर आपने इनिशियली उसे मशीनरी में से एडजस्ट किया था तो मशीनरी की वैल्यू बढ़ा दो। अदरवाइज अगर आप कैपिटल रिजर्व में लेके गए थे या डेफर्ड इनकम की तरह उसे ट्रीट कर रहे थे, तो अकॉर्डिंगली उसको आप ट्रीट करिए। तो यहाँ पर उसने आंसर पूरा लिखा है। The standard further makes it clear that in the first alternative, where the book value of the asset is increased, depreciation on the revised value should be provided prospectively over the residual useful life of the asset. तो depreciation आपको prospectively provide करना था, ना कि retrospectively. Accordingly, the accounting treatment given by Hygiene Limited of increasing the value of plant and machinery is quite proper. However, जो depreciation का treatment है वो जो है कहीं ना कहीं violation कर रहा है। अब इसका आंसर आप बेटर है कि उस तरीके से प्रेजेंट करें कि एज पर AS 12 पहले पूरा टेक्स्ट लिखें कि AS क्या कहता है, फिर यहाँ पर फैक्ट्स लिखें नेक्स्ट पैराग्राफ में, और एंड में आप कंक्लूजन दें। तो दैट इज़ द बेस्ट प्रेजेंटेशन जिससे आप AS को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ABC लिमिटेड रिसीव 2 acres ऑफ लैंड रिसीव्ड फॉर सेटअप ऑफ प्लांट। तो नॉन मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट है, इसे आप नॉमिनल वैल्यू पे दिखाते हैं। इसके अलावा 2 लाख रुपए रिसीव हुए फॉर परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ 10 लाख। 10 लाख की मशीनरी के अगेन 2 लाख रुपए भी मिले। तो इसको या तो आप मशीनरी की वैल्यू में से रिड्यूस कर सकते हैं या डेफर्ड इनकम की तरह ट्रीट कर सकते हैं। यूजफुल लाइफ है 5 साल। डेप्रिसिएशन ऑन दिस मशीनरी जो है SLM से चार्ज होगा। किस तरीके से आप गवर्नमेंट ग्रांट्स को रिकॉग्नाइज करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें टेक्निकल चीज़ नहीं है। सबसे पहले जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला उसको आप नॉमिनल वैल्यू पे लेंगे। इसको अंडरलाइन जरूर करिए जो भी कीवर्ड्स हैं, अगर आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन नहीं करेंगे तो फुल मार्क्स मिलना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद 2 मेथड्स होते हैं जब आपको कैश में मिलता है। पहला कि आप उसे एसेट की वैल्यू में से कम करके दिखाएं। सेकंड तरीका क्या होता है कि आप उसको डेफर्ड इनकम की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड के हिसाब से करते हैं तो 10 लाख में से 2 लाख कम किया 8 लाख, 5 साल में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, हर साल का इतना डेप्रिसिएशन आपका आ जाएगा। सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, इस 2 लाख को डेफर्ड इनकम की तरह कंसिडर कर सकते हैं और हर साल जो है 5 सालों में 40-40 हज़ार रुपये आप P&L में क्रेडिट करते हैं। बट इस केस के अंदर फिर डेप्रिसिएशन आप पूरा का पूरा जो है चार्ज करते हैं, दैट इज 10 लाख डिवाइडेड बाय 5। हर साल पूरे 2 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे P&L के अंदर, और यहाँ पर गवर्नमेंट ग्रांट आप 40-40 हज़ार रुपये हर साल दिखाएंगे, तो नेट इफेक्ट 1,60,000 का ही आएगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिधि इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इन्वेस्टेड इन द शेयर्स ऑफ धनसुख लिमिटेड ऑन 1 May 2020 एट ए कॉस्ट ऑफ दिस 3/4 ऑफ द इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट है, बाकी इन्वेस्टमेंट जो है हेल्ड फॉर मोर देन ईयर है, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का क्राइटेरिया है। पब्लिश्ड अकाउंट्स ऑफ धनसुख लिमिटेड रिसीव्ड ऑन दिस रिवील्स दैट कंपनी हैज इनकर्ड कैश लॉसेस, जिससे मार्केट शेयर एंड इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है वो घट के सिर्फ 7.5 लाख रुपए रह गई, और रिडक्शन इन वैल्यू नॉन टेम्परेरी है, मतलब परमानेंट इन नेचर है। ठीक है, तो देखिए आपको पता है करंट इन्वेस्टमेंट्स तो जो शो होती हैं एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर पे, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होती हैं उसको आप मार्केट वैल्यू पर लेके आते हैं अगर रिडक्शन इन वैल्यू परमानेंट इन नेचर है, और यहाँ पर साफ पता लग रहा है वो परमानेंट इन नेचर है। तो आप किस तरीके से इस चीज़ को डील इन करेंगे एज पर AS 13, तो आप इन्वेस्टमेंट 7.5 लाख की ही दिखाएंगे, क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट तो ठीक है मार्केट वैल्यू लो हो गई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो थी आपकी 1/4 उसकी भी वैल्यू जो है डिक्लाइन हुई है और वो परमानेंट इन नेचर है। ठीक है, तो देखिए एज पर AS 13 वही चीज़ लिखी हुई है, करंट इन्वेस्टमेंट कॉस्ट और फेयर वैल्यू, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है कॉस्ट, हाउएवर provision for diminution shall be made to decline other than temporary in value of investment, such reduction being determined and made for each investment individually।
वही चीज लिखा हुआ है, प्रीति लिमिटेड 3/4 मतलब 7.5 लाख करंट इन्वेस्टमेंट थी, रिमेनिंग लॉन्ग टर्म थी। द फैक्ट ऑफ द केस गिवन इन द क्वेश्चन क्लियरली सजेस्ट दैट प्रोविजन फॉर डिमिनिशन शुड बी मेड टू रिड्यूस द कैरिंग अमाउंट ऑफ शेयर फॉर बोथ कैटेगरीज ऑफ शेयर टू ब्रिंग देम टू द मार्केट वैल्यू। हेंस आप उसे 7.5 लाख रुपए का ही दिखाएंगे और 2.5 लाख रुपए जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करेंगे। गॉट इट? श्योर। Thereafter, coming to the next question, that is the question number 20. चलिए क्वेश्चन नंबर 20, when capitalization of borrowing cost should cease as per accounting standard 16, explain in brief. देख कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट कब होता है? जब वो क्वालिफाइंग असेट हो, ठीक है। तो जब वो क्वालिफाइंग असेट नहीं है तो बेसिकली कैपिटलाइजेशन जो है आपका सीज हो जाएगा। तो शुड सीज व्हेन सब्सटेंशियली ऑल द एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर द क्वालिफाइंग असेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल आर कंप्लीट, ठीक है। यही एक्सप्लेन किया हुआ है, एक बार जस्ट इसे आप रीड कर लीजिए, कुछ भी इसमें सच इंपॉर्टेंट नहीं है खास। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन AS 11 और 16 का जो एक कंबाइंड क्वेश्चन बनता है, जो हमने अपनी क्लास में भी प्रैक्टिस किया हुआ है, वही शान बिल्डर्स लिमिटेड बोरोड अ सम ऑफ ₹10 lakh एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर 1920 फॉर इट्स रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट एट 4%। इंटरेस्ट पेबल है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। एट द टाइम ऑफ अवेलमेंट एक्सचेंज रेट था 56 और एंड द रेट एज ऑन 31 मार्च $62 है। इफ शान बिल्डर्स लिमिटेड हैड बोरोड द लोन इन इंडिया तो उस पर इंटरेस्ट 10.5% जाता है। आपको निकालना है बोरिंग कॉस्ट एंड एक्सचेंज डिफरेंट फॉर द ईयर एंडिंग दिस एज पर एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो देखिए बड़ा ही सिंपल सरल क्वेश्चन है, कुछ टेक्निकल नहीं है भाई। यूएस में आपने लोन लिया तो कितना इंटरेस्ट बनता है? $10 लाख का लिया 4% के हिसाब से, ठीक है। और इंटरेस्ट लास्ट में कंप्यूट होता है तो 62 का रेट लगेगा, इंटरेस्ट बना इतना। यही लोन इंडिया में लेते तो इंडिया में लोन लेते 10.5% का इंटरेस्ट देना पड़ता, $10 लाख और उस समय 56 का रेट चल रहा था जब आपने लोन लिया था। यस और नो? तो $10 लाख 56 का रेट चल रहा था उस समय, तो 56 लाख का लोन होता, उस पर 10.5% से ब्याज मिलता 58,80,000। अभी इंटरेस्ट इतना जा रहा है, यही लोन इंडिया में लिया होता तो इंटरेस्ट इतना देना पड़ता। यस और नो? बट प्रॉब्लम क्या आ गई कि आपकी लायबिलिटी भी बढ़ गई। जब लोन लिया था तो 56 का रेट था, अब रेट है 62 का, तो 6 रुपये का रेट बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं आपकी लायबिलिटी जो है वो अब देखा जाए तो 60 लाख से बढ़ गई, ठीक है। अब मेन 3 अमाउंट्स हमें इसको निकालने होते हैं कि यूएस में कितना इंटरेस्ट, इंडिया में लोन लेते तो कितना इंटरेस्ट जाता, लायबिलिटी कितनी इंक्रीज हो गई। उसके बाद हमको क्या करना होता है बेसिकली कि जो यूएस में इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और इंडिया में इंटरेस्ट पे करते हैं तो दोनों का जो डिफरेंस होता है वो लेंगे, दैट कम्स आउट टू बी 34 लाख रुपीस। तो आउट ऑफ 60 लाख जो 34 लाख है इसको आप बोरिंग कॉस्ट मानते हैं और जो रेस्ट है 26 लाख उसको आप जो है एक्सचेंज डिफरेंस मानते हैं। सारा का सारा 60 लाख एक्सचेंज डिफरेंस नहीं माना जाएगा, सिर्फ 26 लाख रुपए एक्सचेंज डिफरेंस माना जाएगा। जो 34 लाख रुपए 34 लाख रुपीस ये कहाँ से आया? द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अमाउंट। क्यों? क्योंकि अगर आपने लोन यूएसए से लिया, अगर यही लोन आप इंडिया से लेते तो आपका इंटरेस्ट कितना जाता, उसका जो डिफरेंस है दैट इज 34 लाख। उस एक्सटेंट तक 60 में से 34 लाख उतना अमाउंट जो है वो आपका बोरिंग कॉस्ट माना जाता है। तो इस पे हमने क्वेश्चन बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, जस्ट फॉर रेफरेंस हमने यहाँ पे डिस्कस किया आपके साथ। तो इसी के साथ पूरा आपका आरटीपी मई 2021 का जो है वो दी एंड कंक्लूड होता है। और इसके अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी रेफरेंस के लिए क्वेश्चन नंबर 4, 9, 13, 15 एंड 17 इसको आप बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा।